हेलो बच्चों। तो आज एक दूसरे लेक्चर में, जो कि पिछला लेक्चर था, उसका एक एक्सटेंशन है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर नंबर 12. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइलेक्ट्रिक, which is a subtopic under the capacitors, and electrostatics is the overall topic name, and we'll be discussing today part 2 of the dielectric. तो पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने किया था, उसका एक शॉर्ट समरी हम यहाँ पर दे रहे हैं. So what we had discussed in our earlier class was that डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने पे क्या होता है. The capacitance of the capacitor is increased by a factor of k. Supposing this is the dielectric, whose dielectric constant is k. If it is introduced between the plates of the capacitor, induced charges appear on the surface of the dielectric. This we had discussed, and this induced charge, which is q dash, supposing this is q is the free charge, plus q and minus q, and this is minus q dash, and this is plus q dash. So the charges appear on the surface of the dielectric whose magnitude, that is q dash magnitude, is always less than q. और इस मैकेनिज्म के चलते जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इन बिटवीन, this gets weakened, and they get weakened by a factor of k. So if E naught is the electrostatic field due to the free charges, that is when no dielectric was present, then the electric field in between, if it was of magnitude E naught, and when the dielectric is introduced, supposing if the electric field is E, then E and E naught is related by E is equal to E naught by K. So the field is weakened by factor of 1 by K. This we had discussed in our previous lecture. The mechanisms of which we are not discussing today. So as a result of this weakening of the field, the potential is also decreased by factor of K, and subsequently we had seen that irrespective of the mechanism of introducing the dielectric, the capacitance of the capacitor always increases by factor of K. So C is equal to K times C naught. We had seen this. If C naught is the capacitance of the capacitor without the dielectric, and if a dielectric is introduced whose dielectric constant is K, and the capacitance always increases by factor of K. So these are the things that we had covered under our previous lecture. And today what we will be discussing, as we had promised earlier in the lecture, that today we will be discussing more about the dielectric, the internal mechanisms of the dielectric. We had covered a bit in our previous lecture, and the rest we will be discussing it today. So one more important thing is the modification of Gauss law. So what is Gauss's law? Gauss's law says that the electrostatic flux over a closed surface S is just equal to charge divided by epsilon. So this is the enclosed charge by the Gaussian surface. This is the Gauss's theorem. Okay. Now when we are saying Q enclosed, it includes all the charges. So as we have seen in case of capacitors and dielectrics, that it consists of two charges. One is the free charge existing on the surface of the metal plate, and other is the induced charge on the dielectric due to the charges appearing on the surface of the metal plate. Charge is induced on the surface of the dielectric. So whenever we are citing the Gauss's law, we have to take into consideration the entire charge which is enclosed by the Gaussian surface. Suppose
Supposing we have a parallel plate capacitor and a dielectric. Within it, we will be taking a Gaussian surface shown by the dotted line. This is a closed Gaussian surface. Okay, so this is our Gaussian surface. This is our Gaussian surface. So within the Gaussian surface, we have two charges, namely the charge on the metal plate and the charge on the surface of the dielectric. So this theorem or the Gauss's law is modified in the following manner. E dot ds over closed surface S, where this is our S. Okay, this is our Gaussian surface. So this is equal to Q enclosed. Q enclosed means both the charges. So what are the two charges? Q is the free charge and minus Q dash is the, sorry, bit of modification over here. थोड़ा सा modify करते हैं इसको. ये मेरा Gaussian surface. Okay, so this is our Gaussian surface. So within this Gaussian surface, यदि पूरा ले लेते तो फिर नेट चार्ज 0 हो जाता, विच इज ऑब्वियस. तो वो मेरा पर्पस नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये गॉसियन सरफेस लिए, सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस गॉसियन सरफेस. सो दिस इज q minus q dash divided by epsilon. So this is our new Gauss's theorem. लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि q dash जो है इंड्यूस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये बहुत ही दिक्कत होता है हमें जानने का कि कितना है, मेजर करने में भी प्रॉब्लम. तो इस वजह से इसको सिंप्लीफाई यदि किसी तरीके से हो के, और जो फ्री चार्जेस है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल व्हिच इज वेरी इजी टू मेजर आल्सो, तो इस टर्म्स में यदि आ जाता है तो बेहतर होगा. सो लेट अस सी इफ वी कैन डू दिस. सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन दैट द इंड्यूस्ड चार्ज Q is equal to 1 minus 1 by K times the free charge. So this we had derived in our earlier lecture. We won't be deriving it again. तो इससे क्या निकलता है, Q माइनस Q डैश निकालने की कोशिश करेंगे. सो इसको हम ओपन कर देते हैं और यहां से मेरा इसको उधर ले जाते हैं. सो Q minus Q dash and this is brought to this side, so this is equal to Q by T. So by simple rearrangement of the terms we are getting Q minus Q dash is Q by T. So just by introducing a dielectric constant, we are able to simplify the Gauss's theorem in terms of the free charge. So Q minus Q dash, we will be replacing it by Q divided by K into epsilon. So this is our modified Gauss's theorem. इसको थोड़ा सा और इन टर्म्स को इधर ले जाते हैं और हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल K टाइम्स E dot ds, okay, this is equal to Q. और इस एप्सिलॉन को इधर भी ले जा सकते हैं, Q by epsilon किस फॉर्म में भी रख सकते हैं. So this is restated, this is redefined in terms of only the free charges. यहाँ पर हम जो induced charges है उसको हम replace कर दिए in terms of free charges, and our new Gauss's theorem जो एक general Gauss's theorem which is valid for both without dielectric and with dielectric. ठीक है, दोनों ही केस में. तो so this is a much more general Gauss's theorem. It is much more comprehensive. So that is K times E dot ds is equal to Q divided by epsilon. ठीक है, तो ये पोर्शन है यहाँ पे. Let us move on to
a further discussion of the dielectrics, I will be introducing three vectors over here. One we know beforehand, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये. दूसरा हमारा डी वेक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, which is known as electric displacement vector, and third is p vector, which is known as a polarization vector. यहाँ लिख देते हैं polarization z जो भी दी है polarization vector. Okay, this is the electric displacement vector. और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, as we know from our earlier discussion. So ये दो नई चीजें हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे. So from our previous discussion we had seen that a resultant electric field existing, okay, a resultant electric field. अब ये हमारा क्या था, E नॉट था. फ्री चार्जेस के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड था विच वाज E नॉट, और जो सरफेस चार्जेस अपीयर तो डायइलेक्ट्रिक्स उसके चलते ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड उल्टे डायरेक्शन में. सो दिस वाज आवर E dash and E was the resultant of E naught and E dash. Since they are in the opposite direction we have E naught minus E dash. और हम जानते हैं कि E कैसे लिखा जाता है in terms of charges. So E is equal to, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, और E नॉट को हम लोग लिखेंगे E प्लस E डैश, ऐसे लिख लेते हैं. E नॉट है फ्री चार्जेस के चलते, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने देखा था शीट ऑफ चार्ज कंसिडर करके कैसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है व्हिच इज Q by A. सो कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स वी हैव फॉर E नॉट वी हैव Q divided by epsilon naught into A. Now for E, which is the resultant electrostatic field, we had seen that it gets reduced by a factor of K, and therefore this is Q divided by K into epsilon naught into A. Okay, so this was our A, and E dash is due to the surface charges appearing on the surface of the dielectric. ठीक है, तो उसके चलते जो हुआ उसके चलते हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे Q डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू. ना पूरे इक्वेशन को यदि हम एप्सिलॉन नॉट से इंटू करें तो क्या मिल रहा है मेरा, Q बाई A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस Q डैश का. अब ये जो है ये मेरा डी वेक्टर, ये वाला जो है ये मेरा ई वेक्टर, और ये जो है इसको हम पी वेक्टर लिखते हैं. तो हमारे तीन वेक्टर्स हम यहाँ पर एक पहले से जानते हैं, बाकी दो वेक्टर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस समझते हैं इसको. तो सबसे पहले बारी आती है पोलराइजेशन वेक्टर की. हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या है. व्हाट इज अ पोलराइजेशन वेक्टर? आइए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइपोल्स की बात की थी हम लोगों ने. सपोजिंग एक इस तरीके का हम लोग डाइपोल्स ले लेते हैं, ठीक है, ये अरेंज्ड, और इस पर पॉजिटिव चार्जेस है मेटल प्लेट पर एंड नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट. इसके चलते यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d. इसको हम डेल्टा Q ले लेंगे,
प्लस डेल्टा क्यू लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सिर्फ एक सीरीज को हम लोग लेते हैं, बाकी आप समझ जाइए। डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। Now what is the dipole moment? As we had seen earlier, if two charges plus q and minus q are separated by a distance 2l, then a dipole moment of this dipole is equal to the magnitude of the charge into the distance between the two charges into r vector. r vector क्या है? यूनिट वेक्टर है जो डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। किधर है? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये है आर वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में हम लोग ये कंसिडर किए थे। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे डाइपोल्स यदि एग्जिस्ट करते हैं विद इन द डाइलेक्ट्रिक और ये रीओरिएंट हो जाता है इस तरीके का, तो व्हाट डज हैपन? ये मेरा सरफेस, दिस इज द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक, इस सरफेस में इस पॉइंट, क्योंकि माइनस डेल्टा क्यू को बैलेंस करने वाला कोई नहीं, ये माइनस डेल्टा क्यू यहां पर आ गया इस सरफेस पर। और सिमिलरली प्लस डेल्टा क्यू इधर, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से यहां पर प्लस डेल्टा क्यू अपीयर होगी। ओके, ना इसको हम ऐड करते हैं। डाइपोल मोमेंट को वेक्टर है, और इफ द वेक्टर्स आर aligned in the same direction we can add it as scalars। हम जानते हैं इसको। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो इंडिविजुअल जो स्मॉल पोलराइजेशन वेक्टर्स, ठीक है, डाइपोल मोमेंट्स, तो ये P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा है। ठीक है, इसको जब हम सम करते हैं, इस सीरीज के लिए भी सिर्फ सम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि डेल्टा इज द सेम, डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, और इसको जब ऐड करते हैं हम लोग, तो यहां से समझ में आता है कि एक बड़ा पोलराइजेशन वेक्टर एंश्योर्स फ्रॉम हियर। ठीक, ये है बड़ा पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये पोलराइजेशन वेक्टर जो है, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि दिस इज द समेशन ऑफ, दिस इज द पी टोटल। ठीक है, सो दिस इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर डाइपोल कॉन्स्टिट्यूटिंग विद इन द डाइलेक्ट्रिक। तो अभी यहां से जो हमको मिलता है, we are seeing that d vector is equal to e vector plus p vector। इसके नीचे हम लोग ने देखा था q डिवाइडेड बाई a था, इसके जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन k था, और यहाँ पर q डैश डिवाइडेड बाई a। तो ये हम लोगों ने देखा था। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक, तो जब हम सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ठीक, इस टर्म को यदि लेंगे हम लोग, q डैश यदि लेंगे, q dash is what? This is the sum total of all the charges on the surface of the dielectric। इसको यदि हम d से इंटू करते और नीचे भी a इंटू डी करते,
है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ, क्यू डैश बाई है, डी डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। तो इसको यदि हम एक बड़ा डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं, दिस इज द सम ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट, क्यू डैश इंटू डी क्या है, हमने यहां पर देखा था कि सभी डाइपोल्स को जब आप सम करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, सम टोटल ऑफ द टोटल डाइपोल मोमेंट मिलता है। और इस टोटल डाइपोल मोमेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सपोजिंग ये मेरा डी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो जो चार्जेस अपीयर हुआ है यहाँ पर क्यू डैश इनटू डी, दैट इज द डिस्टेंस, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, कितना है प्लस क्यू डैश, यहाँ पर कितना है माइनस क्यू डैश। तो ये चार्जेस आर बिकॉज ऑफ द डाइपोल से रीअरेंज, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट का। तो क्यू डैश इंटू डी जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल डाइपोल, ठीक, पी टोटल हो गया ये, गॉट इट। और ए इंटू डी क्या है, देखिए ये सरफेस एरिया है, इंटू डी यदि कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। सो द एंटायर समेशन ऑफ द डाइपोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन, ठीक है। यहां से एक हमको आइडिया मिलता है कि पोलराइजेशन वेक्टर एक नई चीज है, आपको इंट्रोड्यूस किए, इसीलिए समझना बेहद जरूरी है कि ये कहां से आया। ये आया आपका डाइपोल मोमेंट के रीअरेंजमेंट से, जो सरफेस चार्जेस बनता है उसको लेके जो टोटल डाइपोल हम क्रिएट करते हैं डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। So this is the polarization, that is per unit volume, okay, the total dipole moment per unit volume जो है उसको हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर के टर्म्स से के नाम से जानते हैं, ओके। आई होप कुछ आइडिया मिला होगा कि व्हाट इज अ पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज नहीं, ठीक। जब हम हायर क्लास में जब जाएंगे तो पोलराइजेशन वेक्टर को और कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिराइव किया जाता है। चूंकि ये क्लास 12 का लेक्चर, इसीलिए हम यहाँ पे जैसे समझ में आए, ठीक है, जो आपके विद इन में है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ फेयर आइडिया, वी हैव गॉट इट, दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स बीइंग क्रिएटेड विद इन द डाइलेक्ट्रिक्स, जो कंट्रीब्यूट करता सरफेस चार्जेस को, सरफेस चार्जेस की वजह से जो टोटल डाइपोल क्रिएट होता है डिवाइडेड बाय इट्स एंटायर वॉल्यूम इज नोन एज द पोलराइजेशन वेक्टर, दिस इज पी। ना डाइपोल के केस में हम लोग एक और चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया, सपोजिंग ये सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो चूंकि पोलराइजेशन वेक्टर इंक्लूड्स द समेशन ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दो द फील्ड क्रिएटेड बाय दिस इज इन दिस डायरेक्शन, मेरा ई डैश जो है इधर है, लेकिन जो पोलराइजेशन वेक्टर है this is from negative charge to the positive charge, so this p is in the downward direction, so this you have to keep it in mind. अभी आ जाते हैं q by a which we have termed as the electric displacement vector, और ये मेरा क्या है, ये e वेक्टर। तो हमने गॉसेस थ्योरम से सॉरी देखा था E dot ds जो है summation over all the surface, this is equal to q minus q dash divided by epsilon. So this includes both the charges appearing on the dielectric surface and the free charge, दोनों को इंक्लूड करके। तो ये जो है इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक, और इसको हम लोग डिराइव करके क्या किए थे, इन टर्म्स ऑफ फ्री चार्ज q by k एप्सिलॉन नॉट किए थे, और k को फिर इस तरफ ले आए थे,
तो यहां से हमको जो मिलता है एप्सिलॉन नॉट को यदि इस तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं डॉट ds, ठीक है, इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय k। फिर k को इधर ही ले आते हैं। दिस इज द फ्री चार्ज। सो इन टर्म्स ऑफ फ्री चार्ज वी हैव एक्सप्रेस्ड इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा गॉसेस थ्योरम का मॉडिफिकेशन था। यहाँ से पता चलता है कि जो E है इट शुड कंसिडर, बिकॉज गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट E should consider all the charges enclosed within the Gaussian surface, the free charge as well as the induced charge on the surface of the dielectric। ये दोनों ही आने चाहिए E में। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका? E का, ठीक है, क्योंकि Q by K यहाँ से आप देख सकते हैं Q by K जो है इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाएगा, ओके। तो इस टोटल चार्ज के आ जाने से ये मेरा क्या बनता है? E बनता है। और D जो है एक स्पेशल वेक्टर हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, और ये सिर्फ किसके चलते हैं? फ्री चार्जेस के चलते, ठीक है। यदि सिर्फ फ्री चार्जेस के चलते तो मेरा वेक्टर बनता है, उसको D वेक्टर हम लोग D वेक्टर से डिनोट कर, ठीक। तो आई होप डी, पी और ई के बारे में थोड़ा बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा। और जब आप बाद में हायर कोर्सेज में जाएंगे फिर इन सबों को और भी बेहतर ढंग से कैसे डिराइव किया जा सकता है उसको आप लोगों को बताया जाएगा। अब इन तीन वेक्टर्स को यदि हम ड्रॉ करें यहाँ, तो जो डी वेक्टर है वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा? फ्री चार्जेस शुरू होगा, फ्री चार्ज पे खत्म होगा। सो दीज आर द डी वेक्टर्स। ई वेक्टर्स जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो हमको मालूम है कि ये वेक्टर जो है रिड्यूस हो जाता है कहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक के भीतर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ electrostatic field within the dielectric gets reduced because of the existence of the electrostatic field in the opposite direction due to the induced charges। तो इस वजह से यहाँ पे बड़ा गैप्स रखें, so this denotes that the electrostatic field is reduced। गैप्स में वही रहता है, डायलैक्ट्रिक्स में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। और जो पी वेक्टर, जैसे कि हमने बताया था, ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? केवल और केवल डायलैक्ट्रिक में एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडेड द देयर आर सरफेस चार्जेस ओवर द डायलैक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसके चलते जो मेरा है ये मेरा पी वेक्टर, ये मेरा ई वेक्टर। तो ये डायग्राम जो है एक अंडरस्टैंडिंग देता है मेरा ये तीन वेक्टर्स का रिलेशनशिप क्या है, ओके। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि क्या डी और पी को ई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डी है मेरा क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड पार्ट हम लोग ले रहे हैं, डायरेक्शन जानते हैं कितना होगा, एक ही डायरेक्शन है। तो डी इज इक्वल टू क्यू बाई। अभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको के और एप्सिलॉन से इंटू करते हैं। तो ऑब्वियस है एप्सिलॉन इंटू के यहाँ भी जाएगा, और क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ए के
ये जो पार्ट है ये क्या है मेरा E। सो D इज जस्ट एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू E। ठीक है, तो वेक्टर दे देते हैं। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और पोलराइजेशन वेक्टर जो है, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर हमारा क्या था, Q डैश डिवाइडेड बाय A। Q डैश हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री चार्ज कैसे लिखा जाता है, 1 माइनस 1 बाई K टाइम्स फ्री चार्ज डिवाइडेड बाय। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्रेस लाइक। और इसमें क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन मिसिंग है, इसीलिए एप्सिलॉन ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। सो व्हाट एंश्यूज फ्रॉम हियर, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K माइनस 1 into Q divided by Ka epsilon naught. As we can see, this is E. So P vector is expressed as epsilon naught K minus 1 into E vector. So this is the relationship of the polarization vector with the electrostatic field. Clear है यहाँ तक? अभी फ्री स्पेस यदि डायलेक्ट्रिक नहीं है तो K का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। K यहाँ 1 बैठा दीजिएगा तो P क्या है, 0 हो जाएगा। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस में पोलराइजेशन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल और केवल कहाँ करता है, डायलेक्ट्रिक के भीतर एग्जिस्ट करता है, बिटवीन द सरफेस चार्जेस प्रोड्यूस्ड when it comes under the influence of an external electrostatic field. In this case, the electrostatic field created by the charges appearing in the neutral plates of the capacitor. ठीक, तो ये P का। अभी ये जो हिस्सा है इसको C के टर्म्स में, CHI C के टर्म्स में इसको डिनोट करते हैं, and this is known as a susceptibility. ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब किसी डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में जब आप प्लेस करते हैं तो डाइपोल्स कितना हद तक प्रभावित होता है, ठीक है ना, वो कितना इफेक्ट होता है, कितना ओरिएंट होता है, कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है यदि नॉन पोलर हुआ तो, ठीक है, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो K माइनस 1 है उसको C, तो इसके टर्म्स में जो एक्सप्रेस करेंगे P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू C इंटू E वेक्टर। तो ये मेरा पोलराइजेशन वेक्टर है। I hope the things are clear. We have introduced three vectors, namely the electric displacement vector, polarization vector and electrostatic field vector, और कुछ आइडिया देने का कोशिश की है प्रिलिमिनरी स्टेज में कि उसका मतलब क्या हो सकता है। सो दिस इज फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप इंस्टाग्राम में जाके या फिर कमेंट सेक्शन में इसको कर सकते हैं। I'll try my best to explain it. Okay, thank you so much.